So today we are going to discuss about invoice. An invoice is a crucial instrument issued by a supplier of a goods or services to a recipient. So it is one type of document which is issued by a supplier to a recipient. An invoice is very important for both the parties. It identifies both the parties involved. So who is recipient, who is supplier, that is identified with the help of invoice. List and describe the items sold or services supplied. That means what type of goods or services are provided to a recipient, that is also described in the invoice. Quantifies the item sold, in how much quantity you have sold the goods, that is also shown in the invoice. So the date of shipment and mode of transportation, that means at what is the date of issue, what is the mode of transportation, what is the price, what is the discounts, those all questions answer you will get with the help of invoice. You will also get the delivery and payment option, payment terms in case of supply of goods. So different types of answer you will get on the basis of invoice. So invoicing is a very crucial aspect for ensuring tax compliance under any indirect taxation system. That is means it is a very important aspect. In order to ensure transparency, issuance of invoice for every taxable transaction is a prerequisite. So if you want to maintain transparency, then issue of invoice is a prerequisite and it required है, mandatory है. In case of supply of goods or provision of service, and invoicing is a raised by the supplier of such goods or services to the recipient of the same. The tax invoice act as a document evidencing the payment of the value of the goods or services or both, and as also the tax portion in the same. यानी एक एविडेंस बन जाता है किसके लिए कि आपने पेमेंट किया है एंड कितना अमाउंट का टैक्स आपको मिला है. So there are so many evidence that you will get on the basis of invoice. In certain cases an invoice served as a demand for payment, यानी कभी कभी पेमेंट आपको मांगना है किसी से तो पेमेंट भी इनवॉइस के बेसिस पे से हो सकता है. So there are so many uses of invoice. Section 31 of CGST Act, time limit to issue the tax invoice. आप टैक्स इनवॉइस कब तक इशू कर सकते हो, क्या टाइम लिमिट है, what is the time limit in case of goods, what is the time limit in case of services, that we are going to discuss here. So there are two types of supply: taxable supply of goods. In taxable supply of goods there are three situations. One, supply involves movement of goods. If there is a movement of goods, so when you can issue the tax invoice, you can issue the tax invoice before or at the time of removal of goods. Either before or at the time of removal of goods, यानी उसके पहले करो goods remove कर रहे हो या तो उसके बाद में कर रहे हो. बिफोर और एट द टाइम यानी उसी टाइम पे करो, बाद में नहीं, उसी टाइम पे या उसके पहले करो. सप्लाई दूसरा केस है, सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, यानी सप्लाई में मूवमेंट ऑफ द गुड्स नहीं है. तो उस केस में आप कब तक इश्यू कर सकते हो इनवॉइस? बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग अवेलेबल, यानी आप गुड्स का जब डिलीवरी करवा रहे हो या गुड्स को दे रहे हो, मेकिंग अवेलेबल करवा रहे हो रेसिपिएंट को, उस टाइम पे इशू कर सकते हो, उसके बाद नहीं. गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस. कभी कभी गुड्स है ना अप्रूवल बेसिस या रिटर्न बेसिस पे सेल किया जाता है, यानी आप रेसिपिएंट को ऐसा बोलते हो कि आपको ये गुड्स सेल करना है, अगर सेल नहीं हुआ तो ये रिटर्न कर देना, वी विल टेक इट बैक. तो उसको बोलते हैं गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस और रिटर्न बेसिस. और इस केस में क्या होता है, कभी कभी जो रेसिपिएंट है या तो डीलर है वो गुड्स वापस भी करता है, तो उस केस में तुरंत तो सप्लाई कर देना तो फॉर्मेलिटीज बढ़ जाती है, पेपर वर्क बढ़ जाता है. तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे थोड़ा टाइम लिमिट ज्यादा दिया है कि आप कब तक कर सकते हो. बिफोर चाहो तो आप पहले भी कर सकते हो, एट द टाइम ऑफ सप्लाई यानी सप्लाई कर रहे हो उस टाइम पे भी कर सकते हो, और 6 मंथ फ्रॉम द रिमूवल विच एवर इज अर्लियर, यानी आप जिस दिन को रिमूव कर रहे हो उस दिन से 6 मंथ ऐड कर लो, तो 6 मंथ तक आप इशू कर सकते हो.
So these are the three situations. Supply involves movement of goods. So before or at the time of removal of goods. Supply does not involve movement of goods. So before or at the time of delivery of goods or making available. Goods sold on approval or return basis before or at the time of supply, or 6 months from the date of removal, whichever is earlier. Now taxable supply of services. When there is a supply of services, in that case, what is the time limit to issue the tax invoice? In that case, before or within 30 days from the date of the supply of services. That means या तो बिफोर कर सकते हो, या अगर बाद में करना है तो यहाँ पे 30 डेज के एक्सटेंशन मिलता है. जैसे उसने मान लो कि एक पर्सन है जिसने 1 नवंबर को ही हैज प्रोवाइडेड द सर्विसेज, तो अब उसको क्या कर सकता है, उसका टाइम लिमिट क्या है, 1 नवंबर में 30 डेज ऐड कर दो 1 दिसंबर तक, तो 1 दिसंबर तक या उससे पहले कभी भी टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता है, यानी बिफोर और विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज. बट ये थोड़ा पॉइंट अलग है, अगर वो before or within 45 days of the date of supply of service in case of banking and insurance company, यानी अगर बैंकिंग कंपनी या इंश्योरेंस है तो then it is 45 days, not 30 days. Now what is the time limit for continuous supply? So in case of continuous supply of goods, so in continuous supply of goods where successive statement of accounts or successive payments are involved, the invoice shall be issued before or at the time each such statement is issued or each such payment is received. यानी जब भी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स या सक्सेसिव पेमेंट आर इन्वॉल्व है, यानी अलग अलग अकाउंट इश्यू करते हो अलग अलग टाइम पे या अलग अलग टाइम पे पेमेंट मिलता है, बिकॉज इट इज ए कंटिन्यूअस सप्लाई. कंटिन्यूअस सप्लाई मीन्स आप सप्लाई कंटिन्यू कर रहे हो, एक जगह पे स्टॉप नहीं हो रहा है. वो पहले इतना 500 गुड्स सप्लाई किया, फिर 600, यानी कंटिन्यूअसली देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई द गुड्स फ्रॉम supplier to recipient. So in that case there is no end point. So what supplier will do, supplier will issue a successive payment is involved by the recipient. So the invoice shall be issued before or at the time of each such statement. जब भी सप्लायर कर रहा है वो स्टेटमेंट प्रोवाइड कर रहा है रेसिपिएंट को, उससे पहले कर सकता है या तो स्टेटमेंट इशू कर रहा है उसके टाइम पे भी कर सकता है. So then successive such statement is issued और each such payment is received. या तो फिर पेमेंट जब मिल रहा है तब भी, या बिफोर द पेमेंट या एट द टाइम ऑफ पेमेंट भी वो इश्यू कर सकता है इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स. बट अगर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज हुआ तो देन ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज असर्टेनेबल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट से पता चल जाता है कि इसका पेमेंट का ड्यू डेट ये है, पर्टिकुलर ड्यू डेट पहले से ही डिसाइडेड, प्री डिसाइडेड है. इन दैट केस इनवॉइस शैल बी इश्यूड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द पेमेंट, यानी कॉन्ट्रैक्ट में जो भी ड्यू डेट डिसाइड हुआ है उससे पहले या उस टाइम पे वो इश्यू कर सकता है. और अगर कॉन्ट्रैक्ट में ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट असर्टेनेबल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, इन दैट केस व्हाट ही कैन डू, इनवॉइस शैल बी इश्यूड बिफोर और एट द टाइम व्हेन द सप्लायर और सर्विस रिसीव्स द पेमेंट, यानी सप्लायर को जब पेमेंट मिलता है उससे पहले या उस टाइम पे इश्यू कर सकता है. ये कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज, यानी सर्विसेज कंटिन्यूअसली हो रहा है, सप्लाई हो रहा है. नाउ थर्ड सिचुएशन, पेमेंट इज लिंक्ड टू द कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट, यानी पेमेंट किससे लिंक्ड है, यानी इवेंट जब कंप्लीट होगा तब तो आपको पेमेंट मिलेगा. तो अब कब इश्यू किया जा सकता है उस केस में इनवॉइस शैल बी इश्यूड ऑन और बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ दैट इवेंट. जब इवेंट कंप्लीट होता है उस केस में, उस टाइम पे जब भी इवेंट कंप्लीट हुआ है उससे पहले या उस टाइम पे इनवॉइस इश्यू किया जाता है. नाउ फ्रॉम दिस स्लाइड वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट tax invoice. What is tax invoice? What is the content of tax invoice? So there is no prescribed format for the tax invoice.
And when tax invoice is issued, if a registered person is making supplies or receiving supplies from unregistered person, then a tax invoice needs to be issued by such registered person. यानी जब भी registered person is making supplies of taxable goods or services or both to a recipient, in that case tax invoice is issued. Or when he receives supplies from unregistered person, then also tax invoice needs to be issued by such registered person. So what are the contents of the tax invoice? Name, address and GSTN of supplier. यानी सबसे पहले वो नाम लिखेगा, एड्रेस लिखेगा, GSTN नंबर ऑफ द सप्लायर लिखेगा. So that is, these are the things which are compulsory, and he has to write on the GST format. Yani whenever he is making some tax invoice, so certain fields are compulsory to write. Then second point, consecutive serial number not exceeding 16 character in one or multiple series containing alphabets or numerals or special character or any combination thereof, unique for a financial year. यानी फिर क्या लिखेगा, नेक्स्ट पॉइंट होगा एक सीरियल नंबर का, दैट सीरियल नंबर इज नॉट एक्सीडिंग 16 कैरेक्टर. वो 16 कैरेक्टर में वो क्या लिख सकता है, वन और मल्टीपल सीरीज, एक या उससे ज्यादा की सीरीज. वो उस सीरीज में क्या क्या हो सकता है, उस सीरीज में अल्फाबेट्स होता है, न्यूमरल्स होता है, स्पेशल कैरेक्टर्स होता है, और एनी कॉम्बिनेशन देयरऑफ, एंड इट शुड बी यूनिक फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर. यानी हर एक फाइनेंशियल ईयर के लिए वो यूनिक होना चाहिए, अलग होना चाहिए. देन डेट ऑफ इश्यू, कब इश्यू किया है, वो डेट ऑफ इश्यू क्या है, दैट इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज टू बी रिटन इन द टैक्स इनवॉइस. देन इफ रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड, अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो नेम एंड एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड रेसिपिएंट, जीएसटीएन नंबर, उसका जीएसटीएन नंबर लिखना है रजिस्टर्ड पर्सन का, और यूआईएन, यूनिक आइडेंटिटी नंबर ऑफ द रेसिपिएंट. दैट मीन्स अगर इन केस ऑफ यूनिक आइडेंटिटी नंबर कब इशू होता है, टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और फॉरेन एम्बेसी और कॉन्सुलेट मेंबर्स, तो उनको ये यूआईएन नंबर इशू होता है, उनको टैक्स का रिफंड चाहिए. तो इस केस में अगर आप रेसिपिएंट वो है तो उसका यूआईएन नंबर भी लिखना पड़ता है, और नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन के लिए जीएसटीएन रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना पड़ता है. नाउ if recipient is unregistered and value of taxable supply is greater than or equal to 50,000, यानी अगर रजिस्टर्ड पर्सन, जो पर्सन है रेसिपिएंट, वो अनरजिस्टर्ड है और आप उसको 50,000 जितना या उससे ज्यादा का सप्लाई कर रहे हो, if recipient is unregistered and value of taxable supply is greater than or equal to 50,000, then in that case name and address of the recipient and address of delivery along with the name of the state and its code. नाम क्या है रेसिपिएंट का, एड्रेस क्या है, डिलीवरी एड्रेस क्या है, along with the name, स्टेट का नाम क्या है, स्टेट का कोड क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको टैक्स इनवॉइस में भरनी पड़ेगी. बिकॉज unregistered, you are supplying to unregistered person and value of supply is greater than or equal to 50,000. And if recipient is unregistered and value of taxable supply is less than rupees 50,000, अगर 50,000 से कम है तो उस केस में name and address of the recipient and address of the delivery along with the name of the state and its code. If the recipient requests that such details to be recorded in that tax invoice, इस केस में कंपलसरी नहीं है. अगर रेसिपिएंट रिक्वेस्ट करता है कि ये सब चीज लिखो आप, एड्रेस, डिलीवरी एड्रेस, नेम ऑफ द स्टेट, कोड ऑफ द स्टेट, तो सप्लायर लिख सकता है एट द रिक्वेस्ट ऑफ द रेसिपिएंट, बट नॉट कंपलसरी. नाउ नेक्स्ट पॉइंट दैट इज टू बी रिटन ऑन द टैक्स इनवॉइस, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, HSN कोड ऑफ गुड्स और सर्विसेज. जो भी गुड्स और सर्विसेज होता है उसका एक HSN कोड होता है, दैट इज टू बी रिटन. वो कितना डिजिट लिखना है, एनुअल टर्नओवर इन ए लास्ट फाइनेंशियल ईयर. अगर उसका एनुअल टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है तो नंबर ऑफ डिजिट ऑफ HSN कोड विल बी रिकॉर्डेड नील,
उसमें जरूरी नहीं है HSN कोड की नंबर लिखना। अगर एनुअल टर्नओवर, ये स्मॉल ट्रेडर जो होता है, स्मॉल सप्लायर, उसको बेनिफिट दिया है कि इफ योर टर्नओवर इज अप टू 1.5 करोड़ देन देयर इज नो नीड टू राइट डाउन number of digit of HSN code. Then if annual turnover in a last financial year is greater than 1.5 crore but up to 5 crore, then in that case he has to write 2 digits of HSN code. याद रखना, if annual turnover in last financial year is greater than 1.5 crore but up to 5 crore, then he has to write 2 digit of HSN code. But if annual turnover in a last financial year is greater than 5 crore, then he has to write 4 digit of HSN code. So once again I am repeating, if annual turnover in last financial year is up to 1.5 crore, no need to write any digit of HSN code. If annual turnover in last financial year is greater than 1.5 crore but up to 5 crore, then 2 digit. And last one, if annual turnover in a last financial year is greater than 5 crore, then he has to write 4 digit of HSN code. But this position is different from 1st April 2021. ये पोजीशन चेंज होने वाली है 1st April 2021 से, अगर इंप्लीमेंट हो गई तो। एनुअल टर्नओवर इन प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर, एनुअल टर्नओवर अगर 5 करोड़ या उससे कम है, नंबर ऑफ डिजिट ऑफ HSN कोड फॉर B2B सप्लाई, बिजनेस टू बिजनेस सप्लाई, 4 डिजिट मैंडेटरी है, कंपलसरी है। अगर फॉर B2C, बिजनेस टू कस्टमर सप्लाई है, अगर इन्वॉल्व है तो 4 डिजिट ऑप्शनल है। तो यहां से एक बात पता चल जाती है कि इट इज ऑप्शनल टू रिकॉर्ड दिस डिजिट्स, नॉट कंपलसरी। वेदर supplier wants to do so, he can write down. But if annual turnover is greater than 5 crore and if it is a B2B supply or B2C supply, then he has to write 6 digit of HSN code. It is compulsory. So this is the position from 1st April 2021, but up till now you have to remember this position. Now next important point that is to be written, description of the goods or services. goods का description क्या है वो हमें लिखना है, उसका या सर्विसेज का डिस्क्रिप्शन देना है। क्वांटिटी इन केस ऑफ गुड्स एंड यूनिट्स और यूनिक क्वांटिटी कोड देयरऑफ, कितनी क्वांटिटी में सप्लाई कर रहे हो, या तो फिर गुड्स का कोई यूनिक क्वांटिटी कोड है वो भी आप लिख सकते हो, या तो क्वांटिटी लिखो, यूनिट्स लिखो, या तो यूनिक क्वांटिटी कोड उसका जो भी है वो इनवॉइस में लिखना जरूरी है। देन टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज लिखना है आपको, यानी टोटल वैल्यू कितना है उसका, उस पे से हमें टैक्स का अमाउंट डिसाइड करने में इजी रहेगा। नेक्स्ट, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज टेकिंग इनटू अकाउंट डिस्काउंट और अबेटमेंट इफ एनी, यानी टोटल वैल्यू में से आपको डिस्काउंट, अबेटमेंट यानी लेस करना है, अबेटमेंट इज नथिंग बट सर्टेन अमाउंट इज टू बी रिड्यूस to get a taxable value. So total value में से discount और abatement minus करके what is your taxable value, on which value you can charge your GST, that is to be written in the invoice. Then rate of tax, CGST, SGST, IGST, UTGST और GST compensation cess. So this which rate is applicable, 18%, 28%, 12%, that is to be written in the next point. Then amount of tax charge irrespective of taxable goods और services, CGST, SGST, IGST, UTGST और GST compensation cess. उसके 12th नंबर के पॉइंट में रेट ऑफ टैक्स था और यहाँ पे अमाउंट ऑफ टैक्स है, यानी एक्चुअल अमाउंट क्या है कि आपने कितना टैक्स चार्ज किया है वो लिखना है। सो प्लेस ऑफ सप्लाई अलोंग विद द नेम ऑफ स्टेट इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई, अगर इंटरस्टेट सप्लाई है, यानी व्हाट इज इंटरस्टेट सप्लाई, इफ स्टेट इज डिफरेंट, लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन अ डिफरेंट स्टेट, then what you have to write down, you have to write down place of supply along with the name of state
यानी कौन से प्लेस पे स्टेट यानी सप्लाई हो रहा है इंटर स्टेट केस में, तो वो स्टेट का नाम भी आपको लिखना है। देन एड्रेस ऑफ डिलीवरी वेयर द सेम इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ सप्लाई, यानी डिलीवरी एड्रेस भी कभी लिखना पड़ता है बिकॉज प्लेस ऑफ सप्लाई इज डिफरेंट फ्रॉम डिलीवरी एड्रेस। सो इन दैट केस प्लेस ऑफ सप्लाई डिलीवरी एड्रेस हैज टू बी रिटन in the tax invoice. Next one, whether the tax is payable on reverse charge basis. आपको ये भी लिखना है कि इनवॉइस में अगर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है तो नोट लिखना है कि ये गुड्स या सर्विस ऐसा है जिसमें सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 रिवर्स चार्ज इज एप्लीकेबल, ये भी आपको लिखना है। अगर आप रिवर्स चार्ज फॉल होता है तो इनवॉइस में ये चीज आपको मेंशन करना है। कंपलसरी नहीं है बट अगर एप्लीकेबल है तो लिखना है। सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द सप्लायर और हिज ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, यानी जो सिग्नेचर होता है या तो उसका रिप्रेजेंटेटिव है, ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, उसका सिग्नेचर चाहिए। बट याद रखना यहाँ पे सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर शैल नॉट बी रिक्वायर इन केस ऑफ इश्यूएंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस। अगर इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस है तो उस केस में डिजिटल सिग्नेचर भी नहीं चाहिए और कोई भी तरह का सिग्नेचर आपको जरूरी नहीं है कि उसको लिखना। सो दिस आर द कंटेंट्स ऑफ टैक्स इनवॉइसेस। इतना कंटेंट आपको टैक्स इनवॉइस में लिखना है। एंड रिमेंबर वन मोर थिंग, फॉर्मेट ऑफ टैक्स इनवॉइस इज नॉट प्रिस्क्राइब एनीवेयर। यू कैन प्रिपेयर टैक्स इनवॉइस इन योर वे बट certain items are mandatory to be recorded in tax invoices. Thanks for watching my video. Do like and subscribe my YouTube channel.